औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 505 का क्विज़ नंबर 3। ये करंट क्विज़ है 2024 का, और इसमें जो MCQs मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो क्विज़ में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह आप अपने क्विज़ में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। फर्स्ट MCQs है हमारे पास। लैंग्वेज टीचर्स आर रिक्वायर्ड नॉट ओनली टू टीच इन द क्लासरूम बट आल्सो डैश टू कीप पेस विद द न्यू डेवलपमेंट्स, टू अरेंज लेक्चर्स, टू गिव ट्रेनिंग, टू डू रिसर्च, टू गेट ट्रेनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास टू डू रिसर्च, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द एम ऑफ डैश असेसमेंट इज टू फाइंड द गैप्स एंड वीकनेसेस एंड प्रोवाइड अ रेमेडी, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, प्रोफिशिएंसी, अचीवमेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डायग्नोस्टिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फॉर इफेक्टिव ESP लर्निंग कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हैपन्स इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ग्रुप, सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्लासरूम। तो करेक्ट आंसर है सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी सी। Dash occurs when an associative connection between a certain kind of input and some output pattern occurs. Learning, linguistic error, automaticity, acquisition. तो correct answer है automaticity, option C is correct. Applied linguistics is mainly concerned with the meaningful application of researchers' proposed solution to existing problem related to dash language, competence, parole या language use। तो applied linguistics basically language use से related होता है, real life context में language use से। तो हमारा option D correct होगा, language use। According to Coder, dash refer to what is available to be utilized by input learner for SLA, mother tongue, language input, linguistic competence, linguistic output, language output। तो हमारे पास correct answer है language input, ये आपने याद रखना है, language input। According to Cuman's basic interpersonal communication skill BICS are language skills needed in, ये वाली जो BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ये कहाँ पे ज़रूरत होती हैं? लैंग्वेज क्लासरूम में, सोशल सिचुएशंस में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में या रिसर्च पेपर्स में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सोशल सिचुएशन में। MC Lovin uses the twin concept of dash to describe the cognitive process involved in SLA, learning and acquisition, first and second language, automaticity and structuring, language and parole। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, automaticity and restructuring। The ultimate goal of SLA research is to enable learner face real world challenges, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, ग्रामेटिकल चैलेंजेस। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। CALP मॉडल प्राइमरी डील्स विद स्कूल बेस्ड लर्निंग, हायर स्टडीज इन इंग्लिश, सोशल इंटरेक्शन, बेसिक सिचुएशन। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो BICS मॉडल है वो सोशल सिचुएशन में नीडेड होता है, और जो है CALP ये स्कूल बेस्ड लर्निंग में। Language teachers are required not only to teach in the classroom but also dash to keep pace with the new developments। ये वाला फिर रिपीट हो रहा है। To do research, to give training, to arrange lectures, to get training, to do research is the correct answer। Comprehensible input, comprehensible output and frequencies have been integral part of dash research। All of the given option, first language learning, first language acquisition, second language acquisition। तो correct answer है second language acquisition। Evolution include observation of learning, placement assessment, diagnostic assessment। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, all of the given option, option B is correct। The CUP model was proposed in 1988, 1986, 1992, 1990। तो correct answer है हमारे पास 1986। According to MC Laufen 1987, automatic processing is a dash process and once it occurs, it is difficult to alternate। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है हमारे पास स्लो, कम्प्लेक्स, मीडियम, रैपिड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास रैपिड। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विद ऑलमोस्ट डैश स्पीकर्स, 1.5 बिलियन, 3 बिलियन, 2.5 बिलियन, 1 बिलियन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 1.5 बिलियन। इसमें नेटिव स्पीकर्स भी आ जाते हैं, नॉन नेटिव भी, उनको कंबाइन करके टोटली हमारे पास इंग्लिश के स्पीकर्स बनते हैं 1.5 बिलियन।
Implicit learning refer to the ability to acquiring new knowledge without intending to do so and does not involve deliberate effort, calculations, thinking, decisions। तो इसका करेक्ट आंसर है deliberate effort, यानी कि अनकॉन्शियस लर्निंग होती है implicit learning। नेक्स्ट है जी हमारे पास SLA research includes both general as well as dash theories, complicated, complex, modern, specific। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, specific। डैश प्रपोज्ड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट लर्निंग। इन दोनों में डिफरेंस किसने प्रपोज किया था? सेल्सी मर्सिया, ग्रांट, रॉड एलिस या ग्रैब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रॉड एलिस। लास्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास डैश occurs when an associative connection between a certain kind of input and some output pattern, learning, automaticity, acquisition, linguistic error। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑटोमेटिसिटी। अब आपने वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लिया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।